This conference will now be recorded. चलो जी, तो अज्यूम करें कि रिवीजन किया था। क्यों पर रिवीजन हुआ था कि नहीं? यस सर। एसिडिक प्रॉपर्टी के नोट्स बनाना बेटे, है ना? तो आगे ओके जब सर। कार्बोक्सिलिक एसिड और उन सब में आएगा ना, तो मैं कह दूंगा कि हाँ भी हमने वहां पे किया हुआ था, तो रेफर दैट। तो उस वक्त थोड़ा सा हमारा वो काम कवर हो जाएगा, थोड़ा सा क्या काफी कवर हो जाएगा, हमने काफी कवर कर लिया। So if you remember that we discussed that alcohols की broadly 3 प्रकार की chemical property हम discuss करेंगे। Cleavage of oxygen hydrogen, acidic property that has been discussed, esterification, Grignard reagent के साथ reaction and so on. The cleavage of carbon OH bond, that will be the SN property. ये भी majorly हमने discuss कर ली है PCl5, PCl, HCl, HBr के साथ, and then we will be going toward miscellaneous, that is the oxidation and reduction reactions में आएगा. So let's start whatever is going to be now discussed. Cleavage of ROH bond. The reactivity order is 3 degree, 2 degree, 1 degree. This is the 1 degree alcohol, the 2 degree alcohol, and lastly has the 3 degree alcoholic group. See, we are supposed to cleave this bond. So jitna ye bond weaker hoga, then the rate of reaction is going to be faster. Let this be the reference standard. यहाँ पे 1 plus I इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे 2 plus I इफेक्ट आ रहे हैं. So electron density on this carbon increases, and here the 3 plus I effect are there. So यहाँ पे electron density is maximum. Oxygen तीनों में पहले ही electron rich है, so the repulsion here will be maximum. So this bond is going to break easiest 3 degree ka, then 2 degree, and 1 degree will be least reactive. So due to plus I effect, electron density on carbon atom bonded with OH increases. Repulsion between carbon and OH increases. Therefore, the bond COH break easily. The reactivity order 1 degree, 2 degree, 3 degree is going to be the यहाँ पे जो होने वाला. We have discussed it earlier also, so this is just going to be a review, nothing else. Alcohol plus HX. The OH nucleophile will be replaced by X negative nucleophile. So this has been discussed in method of preparation of alkyl halide. You people remember HF, HCl, HBr, HI, the ROR इस तरफ जाते हुए बढ़ता था. 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols का ROR अभी अभी हमने डिस्कस किया, बढ़ता था. Lucas test and Group's process has already been discussed. What happens in Lucas test? The turbidity in 3 degree was fastest, 2 degree में कम था, और 1 degree में it was found to be सबसे slow आया करती थी. जो 3 degree है, जो 1 degree है, they will be going via SN2 mechanism. बाकी सब are going to go via SN1 mechanism. I hope that's a repetition. It has been just discussed. Plus I effect increases electron density on carbon atom, and the rate of reaction is going to increase. Who remember this and who has forgotten this? The 1 degree, the 2 degree, and 3 degree के case में the milkiness is going to appear immediately. 2 degree में after few minutes, and 1 degree में it appears only after heating. You can say practically 1 degree alcohol do not respond to Lucas or Groves process at room temperature. शर्मा जी, ये रिएक्शन याद आ गया बेटे? This was used as a test between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols में हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है. एक बार रिव्यू कर रहा हूं बेटे, क्योंकि कोई खास बात नहीं है.
ROH plus HBr. What was the catalyst? Sulfuric acid. And you used to get RBr. Here HBr is prepared in C2 by the reaction of KBr and sulfuric acid. So directly adding HBr की जगह पे KBr जो कि एक solid है, sulfuric acid जो कि बड़ा कम वेपराइज करने वाला. So जब कोई चीज कम उड़ती है तो उसका बिहेवियर हम कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि कोई चीज जल्दी उड़ जाती है तो हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. We will be getting the bromoalkanes. Similarly, HI was used. HF तो हमने करना ही नहीं था क्योंकि HF बॉन्ड टूटता ही नहीं है. HCl का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था, HBr का और ज्यादा था and HI is going to be maximum reactive. तो similarly HI में आप फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करते थे. तो यहाँ पे HI के साथ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रखना है. HI is prepared in C2 by the reaction of Ki plus phosphoric acid. We cannot use sulfuric acid because अगर तुमने sulfuric acid use किया, HI तो बन जाता था, but वो sulfuric acid के साथ further react करके oxidize हो जाता था, destroy हो जाता था. तो हमें यहाँ पे sulfuric acid रखने की इजाजत नहीं दी गई थी. The preparation of 2 degree and 3 degree RBr or RI is always avoided by this method because sulfuric acid, phosphoric acid will dehydrate the 2 degree, 3 degree alcohol. आप उम्मीद करते हैं कि मैं इसके ऊपर HI या HBr लगाऊं, तो इसमें catalyst is phosphoric acid or sulfuric acid. So don't expect that here you will get halogen. Because 2 डिग्री की टेंडेंसी ज्यादा है टुवर्ड्स एलिमिनेशन, 3 डिग्री की इवन ज्यादा है, तो हमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को बनाने की परमिशन नहीं दी जाती है इस रास्ते से. I'm little bit speeding up because it has been discussed earlier. The mechanism is SN1 except for 1 degree alcohol जो कि SN2 से जाते हैं. पर SN1 में क्या होता था? It was a 2-step process. SN1 reaction याद आ गया, और जो SN2 Yes, था sir. वो सिंगल स्टेप था. One step. बेशक SN1 हो या बेशक SN2 हो, अल्कोहल एक पुअर, ढीठ, ऑब्स्टिनेट लिविंग ग्रुप है. तो OH को हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, हमें कैटलिस्ट का यूज तो करना ही पड़ेगा. तो देख गुड़िया, ये स्टेप बेशक SN1 है या SN2 है, दोनों में आएगा ही आएगा. देन अगर SN1 है, सो इट इज 2 स्टेप, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? द कार्बोकेटायन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन. एंड सेकंड स्टेप में Carbocation. the halide ion is going to attack to form alkyl halide. अब अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो कार्बोकेटायन तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो अटैक लगे लगे पे होगा. लगे लगे पे मतलब हम उसको ऐसा दिखा देते हैं, दिस इज OH2 plus is going to be the leaving group, the halide ion join, और वो एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बना देता था. Rather it will be good if you call it as, कौन सी स्टेट गुड़िया पढ़ के बता? ट्रांजिशन स्टेट. Transition state. और इसको क्या बोलता था बेटिया? Intermediate. इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट जब 2 स्टेप्स हो तब बनता है. ट्रांजिशन स्टेप जब एक ही स्टेप हो, वो जो एनर्जी बैरियर में ऊपर आता है. देन द वाटर is going to move out and we will be getting the alkyl halide. कॉन्सेप्ट बेटे इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलने का कोई लॉजिक नहीं बनता है. यू हैव टू डू दैट. तो सिमिलरली अगर हमने PCl5 या PCl3 के साथ रिएक्शन किया तो हमें RCl मिल गया था. यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. Darson process was the very good method for preparation of chloroalkane because
the sulfur dioxide and HCl being gases, they will escape, and hence the separation will become very easy. So this is going to be considered as excellent method of preparation. SOCl2 दो प्रकार से रिएक्ट कर सकता है। शर्मा जी कहीं के सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं चांस नहीं ले रहा हूँ गुड़िया, है ना। तो अगर तो अकेला SOCl2 यूज करेगा तो रिटेंशन होगी, अगर SOCl2 एंड pyridine यूज करेगा तो क्या होगा बेटिया, द इन्वर्जन इज गोइंग टू हैपन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, अगर आप इसके ऊपर SOCl2 यूज करते हैं तो यू विल गेट रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब लेट इट बी OH इधर लगा हुआ था, C2H5 इधर था, H इधर था और CH3 इधर था। और अगर आपने SOCl2 pyridine यूज किया, then the story is going to change. You will have the CH3 coming in the opposite direction. So that is going to be, यहाँ पे आपको inversion आपको मिलने वाला है। मैंने अभी तक ऑनेस्टली कोई इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं देखा है, ये हमने वैसे ही कवर कर दिया है, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये देखिए, अल्कोहल PCl5 के साथ क्लोरोएल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट फिनोल्स के ऊपर PCl5 यूज नहीं करने का, बिकॉज क्लोरोबेंजीन मिला, HCl मिला, POCl3 मिला। This POCl3 has a tendency to react with product, that is, I'm sorry, reactant phenol further. Hence, हमें एक unexpected product आ जाएगा, what? Phenyl phosphate along with HCl is going to be produced. So do not use this methodology PCl5 के साथ on the phenol. फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाने का ये काम आपने नहीं करना है, so that is going to be problematic हो जाएगा, right? ये हमने सिर्फ समरी बनाई है, you people have done it, so let's move ahead, इससे आगे चलते हैं, ठीक है जी। एंड ये हम बढ़े आगे, ये रिएक्शन हमने अभी तक नहीं किया है, the Sabatier and Malhay reaction. If you people remember that somewhere we have discussed the Hoffman ammonolysis. So this reaction is similar to Hoffman ammonolysis. कैसे Hoffman ammonolysis के similar सा है? देखो, RX के ऊपर अगर तुम अमोनिया डालते थे, क्या मिलता था? RNH2। अगर RX एक्सेस में होता था तो we used to get R2NH, फिर दोबारा RX के रेट करके ये टर्शियरी अमीन, और फिर दोबारा ये क्या बनाता था? द क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। नाउ डिट्टो सेम we can have alcohol, we can put ammonia, यहां से OH जाएगा, उसकी जगह पे NH2 फिट हो जाएगा, we are going to get RNH2। वहां पे HX आया था, यहाँ पे वाटर आया था। HX को खाने के लिए तुम pyridine या बेस डालते थे, वाटर को खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए तुम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि Al2O3 या थोरिया डाल देते। थोरियम ऑक्साइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमें प्रोडक्ट ज्यादा बनने में कोशिश करेगा। डिट्टो सिमिलरली अर्श समझता है, अगर अल्कोहल डाले एक्सेस में, यस सर, फिर दोबारा वाटर निकाल, क्या मिलेगा? द टर्शियरी सेकेंडरी। फिर दोबारा क्या मिलेगा गुड़िया? टर्शियरी अमीन। और फिर दोबारा अल्कोहल के डालने से क्या मिलेगा? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। You got it? ओके सर। So similar reaction
is going to be expected here video. This reaction is known as Sabatier and Malhe reaction. इसका मतलब समझ आता है ना कि जब हम कन्वर्जेंस करेंगे, यू आर नॉट सपोज टू कोट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट। उसमें सिर्फ आपने वो करने हैं जो एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी आपके सिलेबस में बहुत कम रिएक्शन करता है, कोई बहुत ज्यादा वो रिएक्शन आपसे डिस्कस ही नहीं करवाता है। ठीक Okay, गुड़िया? sir. Yes, sir. चल शेर खान आगे चलते हैं। This is the acidic dehydration. The acidic dehydration काफी important reaction आने वाला है, काफी important है। ये क्लास 11 का पता नहीं वैसे कौन पूछा था, शायद बेदी पूछ रही थी, आज वो है नहीं, कि +1 के रिएक्शन आपने अलग करने हैं। नहीं, +1 के आपने अलग नहीं करने हैं, तो आप मैं सारे के सारे +1 को +2 में सही जगह पे फिट करके करवा जाऊंगा। जैसे दिस रिएक्शन इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कीन। जो रह गए हम उसको किसी बहाने से कवर कर देते हैं, जैसे एनसीईआरटी में कोई कन्वर्जन ले आते हैं या ऐसा। एंड बेटे स्कूल वालों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डालेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके फाइनल बोर्ड्स में आपको बहुत सारे नंबर अराउंड 15 to 20 मार्क्स देके जाते हैं। सो दैट इज द रीजन इन स्कूल वालों का लॉजिक बिल्कुल सही है, उन्होंने आपको बोर्ड की तैयारी करवानी है, तो वो सितंबर टेस्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डालते हैं। हम लोग ब्रॉडर फोकस लेके चलते हैं, हम लोग आपके 2021 में जो नीट और ये जो जेई आने वाले हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा मेजर होती है। सो दैट इज व्हाई हमने तकरीबन 1 महीना सिर्फ जीओसी के ऊपर हाथ लगाया था। तो स्कूल वाले एनसीईआरटी पे चलेंगे, बट स्कूल के लिए ये एनसीईआरटी बेशक आपने किया है या नहीं किया है, आई विश, और सच में ज्यादा समान नहीं होगा अगर आप पी डी एंड एफ ब्लॉक को वहां से पढ़ते हैं, रोज के तकरीबन 5-7 पेज वहां से पढ़ो, एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन सारे करो, इन टेक्स्ट करो, यू विल बी रिवार्डेड इन स्कूल एज वेल एज इन कॉम्पिटिशंस, राइट सर? सो प्लीज दोनों को फोकस करके चलें, बट वी कैन नॉट डू एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक राइट नाउ बिकॉज मेरे पास एक पहाड़ जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम चल रहा है, so that you have to balance। चलो गुड़िया इसमें देखते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। एक बार अक्षर को पढ़ाता हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से जैसे मैं करवाता हूँ वैसे करने वाला हूँ, ठीक? Yes, sir. Concentrated sulfuric acid removes water from alcohol forming alkenes. Different products are obtained at different temperature. काफी important. Rate of reaction 3 degree, 2 degree, 1 degree। आज बता सकता है क्यों? कोशिश कर। Why this order बेटिया? हाँ कोशिश कर, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, जो भी गलत बोलेगा मैं संभाल लूंगा अगर बोला। तो 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि प्लस आई इफेक्ट एक हो जाएगा OH का 3 डिग्री में। ठीक है, हाँ सोचो 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 सोचो, मैं हिंट भी दे रहा हूँ, अभी भी थोड़े समय पहले भी किया था। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। जी हाँ नंदनी गुड। अर्श अभी भी याद कर बेटिया, कल परसों भी किया था। अगर इससे एल्कीन बनाएगा तो आइसोब्यूटीन बनेगा। Yes. अगर से एल्कीन बनाएगा तो ये बनेगा। अगर 1 डिग्री से एल्कीन बनाएगा तो ये मिलेगा। तो which is going to be more stable बेटिया? 3 डिग्री। So that is the case। जो नंदनी ने बोला था, नंदनी ने इंटरमीडिएट बोला था, वो भी वही है, बट इस वक्त द एल्कीन फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी वेरी मच। नंदनी वो आपको अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे नोट्स में भी मिल जाएगा, बट अपने हाथ से लिखते हैं। उसने बोला कि डिफरेंट अल्कोहल्स, आई एम सॉरी, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर आप अल्कोहल
से इस वक्त हमारा एग्जाम्पल चल रहा है इथेनॉल से। Very rarely we people expect you to remember the temperature. So this is a situation where temperature is important. Maybe शायद कहीं और आपको टेम्परेचर याद करने के लिए हम बोलेंगे ही नहीं। तो 383, 413, 30 डिग्री के सेल्सियस के फर्क से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। इस वक्त अल्कोहल एक एसिड बिहेव करता है और एसिड की तरफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वाटर जाता है और तुम्हें मिलता है जो आपने पिछली क्लास में बताया था, द अल्काइल सल्फोनिक एस्टर। समझ आया? Yes, sir. नाम क्या होगा? सोच के बता। नंदनी पर बता सकते? हाँ, इथाइल सरुचि हाइड्रोजन सल्फेट, but this is सल्फोनिक एस्टर है बेटे। गुड। अब टेम्परेचर के बढ़ाने से ये दो अल्कोहल में से वाटर आता है और तुम्हें मिलता है व्हाट? रिमेंबर आर डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल्स। अगर सबके ऊपर पानी डालोगे तो वो वापस पहुंच जाएगा। अब रतन, यहां से वाटर जाता है, ठीक, तो इसमें भी वाटर गया और आपको मिला इथीन। यस सर। सो बेटे इस करके पढ़ रहा था ये सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब यू शुड आस्क एग्जामिनर तीनों में से क्या पूछेगा, या तो वो टेम्परेचर बताएगा, बट ऑब्जर्व करना बाय डिफॉल्ट का मतलब समझ आया? अल्कोहल्स ऑन हीटिंग अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं दिया है तो कौन से वाला रिएक्शन करोगे आप? एल्कीन। तो तीसरे वाला। समझ आएगा बच्चे? 443 केल्विन। यस सर। 443 केल्विन। तो ये क्या आप एक सेकंड ये समझ पाओगे? रेपिटेशन है, अभी भी किया, ठीक। रिमेंबर concentrated sulfuric acid, this is going to happen at different temperature। अभी भी जब नंदनी आपका थोड़ा सा माइक बीच में गड़बड़ हुआ ना, तो आप हमें बता रहे थे, मैंने पूछा था 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन डिहाइड्रेशन बढ़ता क्यों है? तो नंदनी ये वाला रीजन था, अर्श ने हमें बताया था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बिल्कुल सही बोल रहा है। और स्टेबिलिटी ऑफ तो एल्कीन, इस वक्त इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बोल सकता है बेटे। ओके सर। इज ऑल्सो देयर, जो तू बोल रहा है बिल्कुल सही है, 100% सही है, ये भी वही है। तो इस वक्त स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या है? बढ़ेगी। तुम्हें पता है ना, इस वक्त 0 अल्फा हाइड्रोजन, इस वक्त 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस वक्त 6 अल्फा हाइड्रोजन। सो रेदर एलिमिनेशन के प्रति हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स हो या अल्काइल हैलाइड हो, हमेशा जो हमारी स्टेबिलिटी है वो क्या करती है शेरखान? बढ़ती है। चल बेटे, तो एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में जाते हैं। नन्ही कोशिश कर मेरे से बात कर, अगर बीच में कोई डिस्ट्रप्शन हुई तो कोई चिंता नहीं। सब मैं खाना खा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, साथ में खाता रहा और बीच बीच में म्यूट भी करता रहा, तो दो काम करेगा तो इंटरेस्ट भी बनेगा। थोड़े बहुत तो दाल चम्मच जब तेरी कंप्यूटर या फोन पे गिरेगी, सो दैट इज टू बी एंजॉयड, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में छोटी छोटी खुशियां ढूंढो, बट जब मौका मिलता है बहुत काम करो। ये देख इथेनॉल दिख रहा है? यस सर। तो बहना इधर प्रोटोनेशन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यस सर।
तो अब इसको टांग पड़ेगी वाटर को बाहर। हाँ जी सर। आपके पास खाना खाता रहा साथ में, कोई बात नहीं, ये मिल गया तेरे पास क्या चीज, द कार्बोकेटाइन। इस वक्त तो कोई फायदा नहीं है, अदरवाइज अक्षिता अगर कोई और कार्बोकेटाइन बना तो वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता था, क्योंकि इस वक्त तो कोई Yes, sir. कारण ही नहीं था ना। तो अब देखो लोअर टेम्परेचर पे 413 केल्विन पे, Ethene. तो नप ये था, हाँ जी। इसके ऊपर अल्कोहल आ गया, ये हाँ कार्बोकेटाइन जी। इलेक्ट्रॉन है, इसने यहाँ पे हाँ जी। अटैक मार दिया, क्या मिला, समझ गया, हाँ जी। क्या बाहर गया, प्रोटॉन, H1. हाँ जी, प्रोटॉन। और क्या मिला, C2H5। Okay. लोअर टेम्परेचर पे हायर टेम्परेचर पे 443 कर, तो नंदनी इसके बाद मुझे याद कराना, पिछली स्लाइड पे कुछ और भी दिखाना था। तो Okay, sir. CH3 CH2 प्लस, और मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, जानबूझ के इसमें से बीटा हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, अगला हाइड्रोजन। अब इस वक्त दिस प्रोटॉन मूव्स आउट, हायर टेम्परेचर पे यहाँ पे एनर्जी थी तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, लोअर टेम्परेचर पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली बहुत मजबूत बॉन्ड है, तो वो ऑक्सीजन ने एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर दिया, अल्कोहल के अटैक कर दिया। और अब की बार तेरे को क्या आया जो तू बोल रहा था, गलती से पहले बोल गया था, Ethene. दोनों सिचुएशंस में क्या आ गया बाहर, द प्रोटॉन बाहर आ H गया। positive. तो हम इसको एसिड Catalyzed dehydration of alcohol. नहीं, अभी ये करवाने दे, फिर पे कोई याद करा देना, अर्श अगर भूल गया पेज नंबर 26 पे जाना है बढ़िया, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट Okay, चीज sir. अभी उससे भी इंपॉर्टेंट चीज चलेगी। देख थोड़े दिन पहले आपने ये रिएक्शन करवाया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में, याद कर, फ्रॉम एल्कीन्स हाँ जी। क्या डाला था, H प्लस, इधर हाँ कार्बोकेटाइन, हाँ जी। कार्बोकेटाइन वाटर अटैक किया था, हाँ आ जी। गया तो भूल गया, नहीं नहीं आ गया। तो ये भी था। और आज आपको हम उल्टा रिएक्शन करवा रहे हैं, H प्लस, अर्श समझ पा रहा ना, तो अर्श ये चमत्कार कैसे हो रहा है, व्हाट आर वी डूइंग हियर, इधर अर्श अगर Yes. डाइल्यूट था तो इट इज हाइड्रोलाइसिस, पानी का एडिशन हो रहा है। अगर बेना Okay. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस डाल दे, ठीक, वहां पे भी मैंने गलती से H प्लस लिख दिया है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, H प्लस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डाइल्यूट H प्लस लिख दिया है, ठीक है जी, और कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस से तेरे को ये मिल रहा। So alkene, alcohol, they are reversible. It is your intelligence that either alkene को alcohol में ले आओ और alcohol को कहाँ पे ले आओ, you can control the reaction whether we want alkene or whether Alcohols. we want alcohol. It is the acid which is going to matter, Gudiya. So this was the same thing which I was discussing with you
दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन, हमने यहाँ पे डाल दी है। समझ आएगा? Yes, sir. पेज नंबर 26 पे मैं बातों में भूल गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, समझ गया? Yes, sir. इधर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता था ना, तो इधर सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन, इधर सल्फ्यूरिक एसिड कंपैरेटिवली डाइल्यूट हो गया, टेम्परेचर तकरीबन उतना ही मानेंगे, कोई फर्क नहीं है। इधर देख सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट भी काम करना शुरू हो गया, और टेम्परेचर देख 358 का मतलब 100 डिग्री से कम, तकरीबन 80-85 के आसपास आ गया। एंड 80-85 इज, हम केमिस्ट्री में इसको सिर्फ वार्मिंग बोलते हैं, राइट? Okay. 100 Yes, डिग्री sir. से कम तो हम उसको हाई टेम्परेचर मानते हैं। So what you are observing, that conditions are easing out. Why? Because stability of alkene increases, तो rate of reaction बिंदु साहब हमेशा बढ़ने वाला है। समझ आएंगे आप? Yes, sir. अब देख, Yes, अर्श, sir. अगर तो तुम हिंदुस्तानी सिस्टम, I love my country very very much, right? There is no doubt about it. But still I want you people have a full, एक आपकी लाइफ है, तो आप अच्छी जगह पे बैठे, अच्छी जगह पे सीखे, अच्छा सीखे, खुश रहें। बेसिकली ये पेरेंट्स का और टीचर का थोड़ा प्रोटेक्टिव एटीट्यूड आ जाता है, सो आप लोगों को वो लेक्चर बाजी देते रहते हैं। अगर तुम समझ लो तो यू विल बी बेनिफिटेड। अब एक आम आदमी क्या करेगा, नंदनी बिंदल इसको चेपा मारता रहेगा। खास आदमी तुम में से जो डिजर्व करते हैं आगे जाने में रेस में, ठीक है जी, वो क्या करेगा, इसको सोचेगा, इसको पढ़ेगा, इसको लिखेगा, जैसे सानिया शर्मा करती है, अपने वर्ड्स में लिखती है। तो आई अज्यूम आप भी ऐसे लिखते हो, आई अज्यूम बिंदल तुम भी ऐसे करते हो, है ना? सो अपने वर्ड्स डालो, अपना सोच डालो, सो दैट इज गोइंग टू बी लर्निंग मैथ। आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि वी कैन कंट्रोल। सो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अल्कीन से अल्कोहल बनाने का मैकेनिज्म, और मैं बता रहा हूँ फायदा होगा। समय आने पे आपको एक ओवरव्यू आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे। वीडियो चल सकते हैं? Yes, sir. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिंग, आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है। सी, दिस इज important never ever from your school point of view, just to make you different. अगर सल्फ्यूरिक एसिड P2O5 एल्यूमिना यूज करती है, राइट? अगर मेरा साथ दिया तो ये जो E1 E2 लिखा है ये भी करवा दूंगा, बट तुम लोगों को अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना होगा, ठीक? अगर आप चुप करके बैठेंगे तो डेफिनेटली वो सिलेबस में नहीं है, मैं भी क्यों करवाने वाला, क्योंकि दीवारों से तो बात कितनी देर हो सकती है बेटे। तो ये देख बिंदल, सल्फ्यूरिक एसिड P2O5 एल्यूमिना कौन सा प्रोडक्ट देगा भाई? द जेड सेल। Jet cell. कौन सा प्रोडक्ट होता है जेड सेल? द मोर सब्स्टिट्यूटेड। जबकि थोरिया और POCl3, ये क्या है? थोरियम ऑक्साइड, इसको थोरिया बोलते हैं, THORA, और POCl3 में हॉफमैन प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल बिंदल, हम यहाँ पे बेटे 2-ब्यूटेनोल बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, एक ये भी बीटा है। अगर ये निकालता है तो रतन तेरे को मिलता है बच्चे, ये गुड़िया क्या प्रोडक्ट है? ये ब्यूट 2ईन, और आप इसको ZZF प्रोडक्ट या ZZF प्रोडक्ट बोलते हैं। The more substituted product is called as ZZF product. अब देखो ना, even this is beta hydrogen, अरे H और OH यहां से भी तो निकल सकता है ना जी? पिछली बारी H और OH यहां से निकाला था ease के लिए। Now what is going to happen? The product is going to be this. But1ene. But1ene मिला नंदिनी दीदी?
नंदिनी दीदी हाँ जी, माइनर is प्रोडक्ट, known as चुप। हाफमैन, कुछ सिखाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे। हाफमैन प्रोडक्ट वाली, हाँ दिस इज जी, गोइंग टू लेस लेस सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब लेस अल्फा हाइड्रोजन से तूने मानना है, लेस यस सर, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब मोर अल्फा हाइड्रोजन। मोर और अल्फा हाइड्रोजन, स्कूल टीचर या बोर्ड टीचर को बताना नहीं है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, वो समझते ही नहीं। डली, अगर तू यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेगा, ठीक है, पर और ये जनाब जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ योर केमिस्ट्री। तुम किसी भी चीज के ऊपर इसको डाल दो जिसमें पानी है, ये उखाड़ के ले जाएगा। क्या नाम है इसका? P2O5। और इसका क्या नाम है? एल्यूमिना। एल्यूमिना, राइट। ये किसको मेजर देंगे बहना? इसको मेजर देंगे। और जबकि नंदनी अगर थोरिया और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड डालेगा तो नंदनी which is going to be obtained? The Hoffman product is going to be obtained. देख नंदनी, मैंने अपना काम किया, मेरा काम ढूंढ के आपको बताने का था। नाउ जिस दिन यस सर, पोस्ट आया उस दिन तुमने इसकी प्रैक्टिस की थी या नहीं की थी, दैट इज गोइंग टू बी द डिसिसिव फैक्टर। सो वी ओके टुगेदर सर, एक्ट एज अ टीम। आई डू, आपको इंफॉर्मेशन पास की, आपने इंफॉर्मेशन को यस यूज, सर, मैं आपकी जगह पे वहां जाके पेपर लिखने की मुझे इजाजत नहीं है, समझा? तो यस गुड़िया, सर, अब मुझे बस जितनी बार तू बोलेगा, आज तुम भी बीच में टांग फंसा सकते हो पॉजिटिवली गुड़िया, तो बिंदल तुम भी बोल सकते हो। इट इज टेक टू बी टेकन एज पॉजिटिवली। डू यू अंडरस्टैंड? द हॉफमैन यस प्रोडक्ट सर, is going to be the major product. ठीक Yes, है जी? sir. This is just to make it your eye friendly that this is going Hoffman POCl3 or this is going to bring this. अब देखो, तो तुमने मेरे से बात की है तो मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूँ। अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे से बात नहीं लेके जा पाऊंगा। कौन बात करेगा मेरे से? एनीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या बना रहे हैं? अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं बच्चों। इधर बनाते हैं। अब बिंदल और नताशा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ ये डाला तो आपको अभी भी बताया गया था कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा जी? Seed, sir. दैट सब इज द मेजर। ऐसा आपने समझा। अब देखो जी, आपको मैकेनिज्म बताया गया था बिंदल साहब। बिंदल, जब 5 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड रिंग से अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, वो कैंडिडेट बनेगा इसका बिंदल Ring expansion. रिंग एक्सपेंशन के लिए ना बिंदल, मेरे पास तो रबर भी है, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता। देख, ये है बिंदल, सपोज इसकी सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटे नंबरिंग कर लेते हैं। तो इधर पॉजिटिव चार्ज था ना, ये बाद में बना देता हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। और इधर बेटे तेरे पास क्या था दीदी, नताशा? Positive charge. तो आपकी आंखें पहचाने इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। क्या तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन नजर आने शुरू हो गए? Yes, sir. ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है, वही इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है। मतलब आपको आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, राइट? अगर तुम दोबारा कहने को बोलोगे सो दैट विल बी अ प्रिविलेज फॉर मी बेटे। 3, 4, 5, 6, कौन सी कार्बन का नुकसान हुआ?
सेकंड का, तो second, और कौन सी कार्बन का गेन हुआ? 1 का। 6 वाला इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही था। 6 और 1 के बीच में क्या आपको एक एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं मिल जाएगा? एक मिनट में, तो एक्स्ट्रा, ये अगर मैं ब्रेक डाल देता हूं ना तो ऐसा हो जाता है। अब देखो ना, ऊपर वाले को देखते रहो, ये बॉन्ड टूट गया है ना जी? और yes sir, जगह पे आपको सेकंड कार्बन पे क्या आ गया? positive charge, और आपके पास 6 और फर्स्ट के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड, है ना जी? और yes हमें sir, ऐसा लिखने की पूरी परमिशन है। कितने कार्बन की चेन बन गई? 6। 6, के ऊपर क्या लगा था? ये, और दूसरे के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। positive, रिंग कर गई एक्सपैंड। व्हाई रिंग एक्सपैंड? बिकॉज 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल है। इसको क्या बोला? ring रिंग। expansion, अब कार्बोकेटाइन को एक स्पेशल प्रकार की बीमारी थी, तुम्हें याद है? क्या बीमारी थी बच्चों? Rearrangement. अरे वेरी गुड राणा, ये 2 डिग्री है। अगर यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करता हूं तो कोई बात ना बनती, वो भी 2 डिग्री Yes, sir. बनता। और राणा, अगर यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पे 3 डिग्री आ जाएगा। Yes, sir. तो ये पॉजिटिव चार्ज बहना पूरा कहाँ गया? किधर गया? First carbon. 1,2 इस, hydride shift. अरे वेरी गुड, इसको क्या बोला? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब गुड़िया, तेरे पास 2 हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और एक इधर भी हाइड्रोजन है। ये वाला भी बराबर है ना? अगर इधर बनाता तो वो भी बराबर था। तो बेटे मैं Yes, टीचर sir. रास्ते ले रहा हूँ, तो मैं आपको माइनर भी दिखाऊंगा और मैं आपको मेजर भी दिखाऊंगा। अगर मैं इधर से हाइड्रोजन निकालता तो आपको साइक्लोहेक्सेन मिथाइलिन बनता। और अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता, कर्सर देख रहा है ना, तो Yes, sir. ये वाला क्या बनता? फिर बनता। और ये वाला बिल्कुल भी ना आता। तो इस रिएक्शन में नताशा 2 चीजें सोची हैं। क्या चीज? रिंग एक्सपेंशन, और दूसरा कौन सी चीज देखी है? द हाइड्राइड Hydride shift. शिफ्ट देखी। ठीक नताशा, गुड बेटिया। Yes, sir. और प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस करता है। जब भी नताशा तुम्हें 4 कार्बन से अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, जब भी तुम्हें 5 कार्बन से अगली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, मैंने जानबूझ के इसको चेंज कर दिया, दिस इज गोइंग टू rearrange into a stabler ring, because बायर स्टेन थ्योरी के मुकाबले, साइक्लोप्रोपेन के मुकाबले, ब्यूटेन के मुकाबले, पेंटेन के मुकाबले हेक्सेन इज गोइंग टू बी, क्या होता था? स्टेबिलिटी। More stable. और इस वक्त गुड़िया यहाँ पे तेरे को क्या मिलने वाला है? 6 कार्बन Cyclohexane. चेन मिलने वाली है। वो आगे की कहानी है कि आप इसको या इसको फर्दर क्या कर सकते हैं? हाँ जी, रीअरेंज Rearrange. इनटू स्टेबलर कार्बोकेटाइन। ठीक है गुड़िया? अब Yes, तुम sir. बताओ, गलती मेरी, कोशिश तुम्हारी। अगर हमें यहाँ पे
OH और CH, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज Yes, कर sir. देते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट किया था ना, इसकी बार मिथाइल शिफ्ट करवाऊंगा तेरे से। अगर ये होता तो अगर आप लेक्चर ना देखते तो आपने डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट बताना था। समझ गया ना? यहाँ हाइड्रोजन। Yes, sir. अब मुझे आता नहीं, जैसा जैसा तू बोलेगा उसके बाद मुझे भी आना शुरू हो जाएगा, जो तू कहेगा वही करूंगा बेटा। बोल। So पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, शाबाश। फिर मिथाइल शिफ्ट, yes sir, ring expansion, कितने मेंबर की रिंग बनाओ? 5, शाबाश पुत्र। तो यहाँ पे ये अगले पे पॉजिटिव। yes sir, अब मिथाइल शिफ्ट, अब चेक कर ले, हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, हाइड्रोजन तो यहाँ भी है। सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बोल दे, लेफ्ट वाला राइट वाला के मतलब मदद के लिए मैं ABCD हाइड्रोजन लिख देता हूँ। किसको रिमूव करेगा? ए तो खैर ए को तो वैसे ही माफ कर दे क्योंकि उससे अग्री से जाएगा। yes चिंता sir. मत करो, मैं संभाल लूंगा। So B को, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला। तो क्योंकि इससे आपको सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलना था, बिल्कुल से। अगर इधर आता तो भी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ना होता, इधर आता तो भी। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन देख लेना, इधर 3, इधर 3, इधर 2, इधर 2, इसके 8 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इज गोइंग टू द प्रोडक्ट, और ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। This is not going to be formed at all. ठीक है? ये समझ सकते हैं? yes sir, yes sir, ऐसा नहीं हो कि मैं तुम्हें ऑनलाइन के फायदे बताना चाहता हूँ, तुम उल्टे लटक जाओ, राइट? तुम किसी भी ऑफलाइन क्लास में इस प्रकार से रिवीजन कर ही नहीं सकते। What are we doing? Dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol में हमने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। सो मैंने आपको 383, 413, 443 पे डिफरेंट बताया। बाय डिफॉल्ट आपको अल्कोहल 443 पे ये एल्कीन बतानी होगी, और आपसे हमें डिस्कशन में ये पता लगा 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री में रिएक्शन में आसानी होती चली जाती है बिकॉज प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है। मैकेनिज्म डिस्कस हुआ, मैकेनिज्म डिस्कशन में आपसे बात हुई तो आपने कहा कि कार्बोकेटाइन बनता है, लोअर टेम्परेचर पे ईथर बनता है। मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में आपको कहूंगा कि ये मैंने करवाया हुआ है, ठीक। और हायर टेम्परेचर पे बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होती है। डेफिनेटली जब कार्बोकेटाइन बनेंगे तो कार्बोकेटाइन हमें 2 प्रकार से बिहेव करवाएंगे। रिंग एक्सपेंशन हो सकती है अगर आपके पास रिंग से अगली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक। और इस प्रकार से यहाँ पे हमने रिंग एक्सपेंशन की हुई है। और एट द सेम टाइम वी डिस्कस समथिंग एक्स्ट्रा, राइट, bypassing the mechanism के thoria और POCl3 gives you the Hoffman product
as the major product, whereas sulfuric acid P2O5 will be giving you, yes Ratan, which product? The ZSF product as the major product. You might be thinking कि ये slide waste है, but ये slide आपके दिमाग के ऊपर hit करवाने की है कि दोबारा देखो हॉफमैन प्रोडक्ट इस केस में आया। अगर मैं इसके ऊपर P2O5 या सल्फ्यूरिक एसिड लगाता तो यस क्या आना था? This would have been obtained. Do you understand? And similarly POCl3 ये आया। अगर मैं इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड हीट करता तो आपकी जो अल्कीन आनी थी वो कार्बन एटम चेक करना बेटा, ये आनी थी। ठीक, कार्बन एटम को कम मत करना, दैट इज अल्कोहल से चलते हुए हमने अल्कीन बनाने की कोशिश की और आपको बीच में ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बताया। तो who can help me? Yes. क्या शर्मा जी इसके ऊपर रिंग एक्सपेंशन हो सकती है? No. क्यों? 3 cyclobutene. हाँ नंदिनी, नंदिनी मेरे को ना ये गुड़िया मिल गई थी कहीं से, ये है ना, तो मैं ये तुक्का मारा है ना तूने, ये दिख रहा है? हाँ तूने तुक्का मारा है ना, तुक्का सही है बट रीजन सही नहीं है गुड़िया। नहीं उसमें तो अप्रिशिएट। कार्बो के टाइम के साथ है ना एकदम, इसलिए। शर्मा जी आपसे पूछा था, नंदिनी बहुत अच्छा बेटे। सर पता नहीं। सान्या साइक्लो प्रोपाइल methyl carbocation is exceptionally stable due to banana or bent bond resonance, right? Even ये जो बला है जो तू देख रहा है बेटा, this is more stable than benzyl carbocation. ऐसा क्या कारण होगा ये अब हम देखते हैं। दिस इज मोर स्टेबल। अरे आपको तो बताया गया था इसके अंदर रेजोनेंस होती है, इसका मतलब आपकी डिक्शनरी में कोई और चीज ऐड होने वाली है ना, सम न्यू थिंग इज गोइंग टू ऐड फॉर यू। देख ये जो हमारे पास ये होता है ना साइक्लोप्रोपेन, इसके अंदर रिपल्शन बड़ी जबरदस्त होती है। इसका बॉन्ड एंगल कितना था? सर ये बायर्स थ्योरी से करेंगे कैलकुलेट। तो बता, इज हाँ याद कर। यस सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कार्बन को तुम योगा करने के लिए कह रहे हो, तो कार्बन तो बड़ी परेशान है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटे से स्टूल के ऊपर बैठने के लिए भेजूं तो तुम्हारी बॉडी का ज्यादा हिस्सा तो स्टूल से बाहर ही होगा। तो इधर क्या होता है, ये CH2 देख पा रहा, ये CH2 देख पा रहा अर्शी? अर्शी यहाँ पे गुड़िया ये जो बॉन्ड होता है ना, ये प्लेन से बाहर निकल जाता है। ओके सर। सो डाइबोरेन में भी होता था ऐसे, बट डाइबोरोन में 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड है बेटे। ठीक, तो ये जो बॉन्ड है दैट स्क्वीजेस आउट ऑफ द प्लेन। अब हम
इसके ऊपर CH2 पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। अब CH2 पॉजिटिव, इसका भी जो ऑर्बिटल है, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है आज दीदी? sp2। sp2 जो एम्प्टी, ये सुन मेरे इशारों से समझ, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है yes ना? sir और इसके आगे हमने ये लगा दिया है, मान लीजिए जो मेरा पेन है दैट इज द CH2 पॉजिटिव है। इसके इधर एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है ऊपर, sp2 है ना, तो p ऑर्बिटल खाली बैठा हुआ है। और इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे आए हुए हैं? बाहर आए हुए हैं। समझ yes पा रहे sir हो? मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो? yes ये sir क्या? द साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है? इसने मीथाइल पकड़ लिया, इधर पॉजिटिव चार्ज है। और इसके जो बॉन्ड है वो बनाना बॉन्ड, जैसे बनाना का कर्व है वो बाहर आए हुए हैं। इधर तेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो वो बड़ी आसानी से यहां जंप कर जाते हैं। जब वो यहाँ पे जंप करते हैं बहन, ये वाला इस कार्बन का नुकसान हो जाता है, और इस कार्बन को रेड से ही दिखाता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी, क्या कारण आ जाता है इसके ऊपर? CH2। और अब ये बन जाता है CH2, रिंग खुल जाती है और तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। ये आपकी बड़ी भयंकर टेंशन में था, और ये क्या हो जाता है? दिस बिकम्स स्टेबल। दिस इज नोन एज द बेंट बॉन्ड Watson resonance, and this makes the cyclopropyl methane very stable, इतना स्टेबल कि ये अब रिंग एक्सपेंशन आपको शो नहीं करता है, ठीक है? डज नॉट शो which expansion? Ring expansion. Those who are able to understand this and those who will try, it is 100% possible कि आपको अभी ये मुश्किल लगे, but if you are going to try for it, then you deserve to be called differently as compared to other average students. This is known as intellectual disparity. So kindly go through that. आपकी बातों ने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया है। CBSE में वो ये बातें जो दूर दूर तक नहीं करता है। तो वी आर गोइंग टू मूव अहेड। हमने आपको रिंग एक्सपेंशन बताई, हमने आपको रिंग एक्सपेंशन का बीच में आपको ये भी बता दिया है, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली स्टेबल। तो रतन, अब अगली बारी ये क्यों ज्यादा स्टेबल है? बिकॉज ऑफ बेंट बॉन्ड और बनाना बॉन्ड रेजोनेंस। इसको कभी बेटा डांसिंग इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस भी बोल दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन समझ आ गया ना? इधर समझ, ये Yes, होना sir. ऐसे, इसका बॉन्ड ऐसे जा रहा है, अगला तेरे पास ये ऑर्बिटल है, ये खाली बैठा है, तो ये फटाफट इसमें जंप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। नाउ नंदनी, वी आर एंटरिंग इनटू even important thing, that is miscellaneous reaction. I hope you people remember हम कर क्या रहे थे। हमने शुरुआती पेज नंबर 41 वापस आता हूं, तो हमने शुरुआत की थी कि हम आपको 3 प्रकार की रिएक्टिविटी दिखाने वाले हैं। एक ये खत्म हुई, और अब हम इसके मिसलेनियस रिएक्शन में घुसेंगे। बट ये चैप्टर इतना भी छोटा नहीं है कि आपको इसका एंड नजर आ जाए। अभी तो बहुत टॉपिक पढ़ा है, अभी तो फिनोल्स पढ़े हैं, ईथर्स पढ़ा है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स पढ़ा है। सो वी आर गोइंग इनटू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन is gain of oxygen, dehydrogenation is loss of hydrogen। दोनों को आप क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ही तो बोलते हैं। ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कई प्रकार से की जा सकती है। पहले ही इंट्रोड्यूस करता हूं, कॉपर और सिल्वर एट elevated temperature gives different products, gives
different product. Let's see how we are going to get the different products. So one candidate with me, 1 degree. This is the 2 degree, ये, and this is the पर्ल कैसा है 3 degree. 3 डिग्री. तो पर्ल ठीक है गुड़िया? ओ पर माइक चल रहा है बेटे? चल नंदनी कोई बात नहीं, पर्ल शायद अभी बात कर लेगी, उसका माइक गड़बड़ किया हुआ है. तो यहाँ पे आपकी बुक यूज करती है कॉपर एट 573 केल्विन. क्वेश्चन पूछती है Yes, सिल्वर ऊपर. वो सिमिलरली बिहेव करते हैं, कॉपर और सिल्वर दोनों डाल Silver. सकते हैं. रतन ध्यान से देख बेटिया, क्वेश्चन पूछते रहना जब तक समझ ना आए, बिल्कुल भी शर्म नहीं करने का. ठीक, अगर रेलेवेंट हुआ तो जरूर बताऊंगा, अगर नहीं हुआ तो तेरे को बता दूंगा कि छोड़ दे, माफ कर दे उसको. क्या निकलेगा बहना? Okay, sir. water, हाइड्रोजन. अच्छा सान्या बहुत अच्छा. अब तूने ये बोला ना कि वाटर, अगली बारी गलती नहीं करेगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. yes, शर्मा जी क्या निकलेगा दोबारा देख. hydrogen, इससे तू नहीं भूलेगा, मैं बता रहा हूं. तो बहना इसको क्या बोलेगा? dehydrogenation, Dehydrogenation. तो इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या मिला? Aldehyde. राइट. इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन निकाल दिया. चिंता मत करो, आपके लिए मैंने अगले पेज पे भी लिखा हुआ है, वो नोट्स हैं और ये प्रैक्टिस. Aldehyde. एल्डिहाइड. समझ गया? अब हाँ जी. जो शर्मा ने बोला था 3 डिग्री अल्कोहल लूजेस, शर्मा, water, yes sir, तो इसको बोलते हैं, पढ़ के बता. dehydration, डिहाइड्रेशन. और शर्मा जी मुझे पता तुम्हें आता है, कॉमन नाम बताइए. आईपैक नहीं बताना, वो मैं बताता. 2 मिथाइल 40. tertiary butene, isobutene, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, पर मैं जानबूझ के थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ. Isobutene 100% कॉमन है. तो yeah, where 1 degree and 2 degree alcohol form aldehyde and ketone respectively, the 3 degree forms alkenes, alkene, right? Even loss of oxygen, that is also going to be classified in the oxidation के reduction. Reduction. Loss of oxygen is called as what? The Reduction. और सुनो, भूलने का नहीं. तुम ये मान के चलो कि मैंने पेन को जितना मोटा किया है इसीलिए किया है. 3 degree alcohols do not, अंजी, oxidize. भूलना मत, टिके रहना. Right? They do not get oxidized. They are obstinate. ढीठ हैं. उनको जितना मर्जी मोटिवेट कर लो कि तुमने ऑक्सीडाइज होना है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते. They are first dehydrated to alkenes, which can, if desired, can be oxidized. Please do not forget it. Right? तो लॉक किया जाए, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं. They can be dehydrated, but they are not going to be oxidized. ये चीज तुम्हारे साथ दमन
आने वाले समय में भी चलने वाली है। तो दमन, अगर जैसे मैंने लिखा है ना, वैसे तुम भी थोड़ा सा इसको बॉर्नविटा सा पिलाते हुए लिख लेगा दमन, तो फायदा होगा बेटे। ठीक दमन सिंह? तो दमन, दिस इज फॉर यू। सेम रिएक्शन, डू यू अंडरस्टैंड? ऑक्सीडेशन और रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, alcohols with copper or silver at elevated temperature, ध्यान दे भाई, produces aldehyde, ketones and alkenes respectively। तो अब हम आपको करवाने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इंपॉर्टेंट चीज आएगी, टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काफी वैरायटी है, देखते हैं कैसे आता है। सी, टॉपिक इंपॉर्टेंट चलने लगा है तो काफी पूछे जाने वाले, और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, ये बेस बन रहा है तुम्हारा, आगे भी काम आने वाले हैं, इससे पहले भी काम आए। वी हैव वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राजा है, जैसे आप चेस में खेलते हैं, आप राजे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ये जब चलेगा तो ये कुछ ना कुछ खून खराबा करके ही आएगा। तो this is nitric acid. We do not bring nitric acid out of our arsenal unless and until सामने वाला फंस गया है, मैं नहीं ऑक्सीडाइज होता, तब लाएंगे हम नाइट्रिक एसिड को। क्योंकि अगर आप नाइट्रिक एसिड को बेमतलब के लेके आएंगे तो नाइट्रिक एसिड जो चीज ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार बैठी है, ये उसको भी नुकसान करता है। सो अगर कल को आप मुझे बताएंगे कि मैं बेंजीन से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से नाइट्रोबेंजीन बनाता चाहता हूं या बनानी चाहती हूं, तो मैं कहूंगा ठीक है बेटा, बट अगर कोई और रास्ता मिलता है तो प्लीज ढूंढ ले, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्वभाव से खुश रहने वाला नहीं है, ये इस कार्बन कार्बन की धज्जियां उड़ा देगा। आपको नाइट्रोबेंजीन तो जरूर देगा, बट 100 में से 20 मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजीन देंगे और बीच में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोईथेन, पता नहीं क्या क्या मिलता रहेगा। सो नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज हिंदी फिल्मों वाला सिंदूर, PB3O4। इसको रेड लेड या मिनियम बोलते हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सट्रीमली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +4 में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, +2 में लेड इज मोर स्टेबल। तो इस रिएक्शन की डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव, यानी कि टेंडेंसी फॉरवर्ड में जाने की बहुत होती है। सो दिस इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड स्ट्रेंज, हमारा देश इन लॉजिकल लोगों को समझाया भी नहीं जाता है, तो अगर उनको कुछ कहो तो वो ऐसा कहते हैं, हूँ हमारा देश बहुत बढ़िया है, बट वो ये नहीं समझते कि साइंटिफिकली दिस इज नॉनसेंस। तो PB3O4 कई जगह पे चिकन को, सब्जी को लाल रंग देने के लिए डाला जाता है। It can kill a person, it has been killing person from time immemorial in our country, but nobody listen to the logic। जो आप किसी अच्छी जगह से, अगर आपको चिकन का शौक है, आप नहीं खाते हैं, वो ढाबे वाला मानेगा नहीं, क्योंकि आप उसको कहोगे, वो कहेगा बाबूजी मैं तो पता नहीं कितने सालों से कर रहा हूँ। तो वो उसमें चिकन के ऊपर जो लाल रंग आपको चमकता हुआ नजर आता है, दैट इज, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल देते हैं। डोंट डू इट, ये आदमी का गले को खराब कर सकता है परमानेंटली, और ये ऑक्सीडेशन से तो पता ही नहीं हमारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस में क्या कर सकता है। हेवी मेटल आयंस वैसे भी उनको दूर से ही बाय बाय करना है। लेड इज अ हेवी मेटल आयन। KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, नॉर्मली तो ये मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट अगर KMnO4 और K2SO4 K2Cr2O7 को अगर मैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके अंदर डालूं, so they become very powerful oxidizing agent। They can oxidize lots of things which were otherwise भीड़ थी ऑक्सीडेशन के प्रति, ये उनको भी खत्म कर जाते हैं। मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2O2, ऐसे आपको O3 आपको ये मॉडरेट में मिलते हैं। ठीक है,
काफी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जहां पे भी H2O2 की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मैं वहां से आपको निकाल लूंगा, O3 की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मैं वहां पे आपको घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो इन सब के प्रति रिएक्टिव है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे लिए हम सहन कर सकते हैं। सहन करने का मतलब ये नहीं जानबूझ के वहां पे हाथ डाल के देखा कि कुछ होता है कि नहीं होता है, बट हाँ आज से 6 महीने तो नहीं, पिछले साल मई में जनरल इलेक्शंस हुए थे या कल को कोई इलेक्शंस होंगे, आपने अपने पेरेंट्स की स्किन के ऊपर, आपकी तो शायद अभी वोट अगले साल बनेगी, तो वहां पे एक इंडेलिबल इंक डालते हैं। So that indelible ink is Tollens reagent, the ammoniacal silver nitrate, उसमें हम सिल्वर प्लस डाल देते हैं। सिल्वर प्लस इज गोइंग टू रिड्यूस और हमारी स्किन को ऑक्सीडाइज कर देगा। उसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट वो वहां पे काफी देर के लिए, तकरीबन 2 हफ्ते 4 हफ्ते के आस तक आपके पास एक टेम्परेरी स्कारिंग डाल देगा। then the skin will be growing और उतनी देर में वो पूरे देश में इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो पूरी कर जाएंगे। we can use it. So I'm introducing 3 types of oxidizing agent for you people now. ठीक, 3 types of oxidizing agent. तो अब ये भी करके दिखाता हूं एक एक करके। हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन में जाने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे इनको, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जाने देंगे। Alkaline KMnO4, alkaline KMnO4, right? 1 डिग्री अल्कोहल्स को एसिड तक लेके जाएगा, बट ये अल्कलाइन है तो हमें एसिड की जगह पे द सॉल्ट्स मिलेंगे। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक सिचुएशन में आता है। KMnO4 एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज गोइंग टू बी बेसिक में आता है, तो ये हमें RCOH बनाएगा। CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, इसको मैं जोन्स रिएजेंट बोलूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये ब्लू वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के हैं, ये रेड वाले आपके सिलेबस के नहीं है। PCC is going to produce aldehyde from alcohols, ये सारे अपने आप में कंप्लीट डिस्कशन आने वाले हैं, रटना नहीं पड़ेगा बेटे आपको। तो 1 डिग्री अल्कोहल PDC, pyridinium डाइक्रोमेट एल्डिहाइड्स में लेके जाएंगे, और कॉपर ये आप देख चुके हैं, अभी पिछले पेज पे देखा था, एल्डिहाइड में लेके जाएगा। कॉलिन्स रिएजेंट CrO3 डाइक्लोरोमीथेन pyridine, ये एल्डिहाइड्स में हमें लेके जाने वाला है, राइट। मैं इंट्रोड्यूस करता हूं द मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नंदनी ये जो है ना, ठीक नंदनी और शर्मा, हाँ जी। अपने हाथ से एक पेज के ऊपर लिख के, नोट्स में तो डालेगा ही डालेगा, एनसीईआरटी में ना इसको एक पेज के ऊपर चिपका देना बेटे, अपनी एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी विल बी द बुक जहां पे आपको हम लास्ट रिवीजन के लिए बोलेंगे, बोर्ड से पहले भी और तेरे कंपटीशन। सो एनसीईआरटी में जरूर डालना, क्योंकि ये लास्ट दिन तेरी आंखों से आगे जब तू नीट देने जाएगा वो निकलने चाहिए। गुड़िया, टॉलरेंस रिएजेंट माइल्ड, राइट, बड़े वीक हैं। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, फैलिंग सॉल्यूशन, एक एक से दोस्ती कराऊंगा, चिंता मत कर। कॉपर सल्फेट, NaOH, रोशल सॉल्ट। रोशल सॉल्ट क्या आता है? ओए नंदनी, नहीं आता ना, काकर कोई बात नहीं आता। हाँ, तेरे को ऑक्सैलिक एसिड और टार्टरिक एसिड सुना तूने? यस सर। चल कोशिश कर टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर बताने का, अगर नहीं भी बताया कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तो कोशिश करेगा, मुझे तो बस उतना ही चाहिए। हाँ बिटिया, कहाँ किया था? जहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करवाया था, है ना? यस सर। दिस इज 2,3-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। वो जो पीछे उस दिन Yes, तुम sir. मार्केट में बैठी गोलगप्पे नहीं खा रही थी, याद है? तो बड़े स्वाद से गोलगप्पे खा रही थी, तो जो गोलगप्पों के अंदर इमली डालेंगे तो वो तो महंगी होती है, तो वो अक्सर Yes, आप sir. घर में बनाओगे तो आप इमली डाल के डालेंगे, तो आप इसको क्या बोलते थे?
सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको शायद तुमने सुना होगा टाटरी बोलते हैं हम देसी लैंग्वेज में, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, राइट। ये खटास के लिए डाल दिया जाता है। एनीवे गुड़िया, इस वक्त मैं कोई खट्टा नहीं देखने वाला हूं। इस वक्त ये एक बफरिंग एजेंट है। व्हाट इज बफरिंग एजेंट? पीएच को मेंटेन करेगा, ठीक है ना। और सोडियम सिट्रेट बेनेडिक्ट में कॉपर सल्फेट NaOH सोडियम सिट्रेट। शर्मा जी, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? ये शर्मा जी, बस जब मैं बात करता हूं वैसे बात कर लिया कर। यस सर, 1 मिनट याद करने दो। कोई बात नहीं, मैं याद करता हूँ डॉली। C6H8O7 2 हाइड्रोक्सी 7। अरे ये लड़की ने जो बोला है ये तो कंप्यूटर ने कैसे बोल दिया, ये तो मैं भी नहीं सोच सकता। पर ग्रेट, ये तो मेरे को भी नहीं आता। हाँ 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 हाँ, तू बोल। 2 शर्मा हाइड्रोक्सी 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन। यस सर, यही। बात दोबारा बोल। H8 3 और 3 6 और 7। ये चेक कर लेना बेटे, मैं ना गड़बड़ी कर रहा हूँ। तो इधर तो H भी नहीं है। ये 2 3 4 5 6 गुड़िया चेक कर लेना। वो ठीक बोला था, 3 और 3 6 और 7 ये बोला था। प्लीज चेक इट, क्योंकि ये मुझे भी नहीं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया। बट तुम्हारी मेमोरी तो मार्वलस है। बेशक गलत था वो, एक अलग कहानी, ठीक है। yes तो sir, दिस इज कौन सा एसिड है ये? citric acid ये खट्टे फ्रूट्स के अंदर है ना, पाया जाता है। तो दिस orange इज सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम और सोडियम सोडियम सोडियम। ये भी गुड़िया एक बफरिंग एजेंट है। बफरिंग एजेंट है, राइट। तो व्हाट आर बफरिंग एजेंट? which are going to just maintain the pH। pH वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ब्रोमीन वाटर आपको देता है HOBr, तो यहाँ पे Br पॉजिटिव में बैठा होता है, दैट इज गोइंग टू इटसेल्फ बीइंग रिड्यूस्ड। शिफ्स रिएजेंट याद नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम आपको एक एक किस्म से करवाने वाले हैं, अपने आप ये याद हो जाएंगे। शिफ्स रिएजेंट इज अ पिंक सॉल्यूशन ऑफ rosa aniline hydrochloride decolorized by the SO2. These are going to be there the mild oxidizing agent। ठीक, एक और बात सुनो। ओए हर्ष, बड़ी देर से बात नहीं हुई तेरे साथ। हर्ष, अल्कोहल की तो बात करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल, हर्ष ऐसा लिख लेते हैं बेटे। यस सर। 2 डिग्री अल्कोहल, हाइफन नहीं डालना चाहिए। और 3 डिग्री अल्कोहल। जितने यहाँ पे ऑक्सीजन से अगले पे हाइड्रोजन कम होते हैं, तो बहना रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये जनाब सबसे जल्दी मैं भी आया कह के किसी के साथ भी चले जाता है। जैसे घर में कोई छोटा सा बच्चा है तो उसको कोई चॉकलेट दे के ले जाए, और ये इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। ये तो कोई बूढ़ी दादी नानी बैठी हुई है जो हिलती नहीं है, उसको तो चोर भी आके नहीं लेके जा सकते हैं, उठा के नहीं लेके जा सकते हैं। So that is, these are not going to get oxidized। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें कॉपी करना है भैया। अब इनसे ऑक्सीडेशन से बना के दूंगा एल्डिहाइड। दे आर वेरी वेरी, बस करते हैं वेरी वेरी लिखना, easily oxidized to the carboxylic acid by any oxidizing acid। समझ गया? ये Yes, किसी sir। भी oxidize, जो भी मैंने आपको लिस्ट दी थी थोड़े समय पहले, मॉडरेट लगा दे, स्ट्रॉन्ग लगा दे, माइल्ड लगे, किसी के साथ भी एल्डिहाइड आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाएंगे। अब Yes। जो 2 डिग्री आएंगे, 2 डिग्री
कैन बी, ध्यान से देख गुड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में से निकल रहा है, किस में जाएगा? कीटोन में। 1 डिग्री किस में जाएगा? एल्डिहाइड में। मैं अभी भी कह रहा हूँ याद मत कर, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो 2 डिग्री किस में जाएगा? कीटोन में। ये जाते हैं विद Okay, sir. मॉडरेट और पढ़ के बता, Strong oxidizing agent. और जो 3 डिग्री होते हैं, I'm sorry, एक H ज्यादा लगा गया, these Do not oxidize. Not oxidized. do not oxidized. तो do not oxidize. मेरी स्क्रीन चली नहीं, चलो मैं कुछ यहाँ पे लिखना चाहता था, उसमें टाइम लग जाएगा, अदरवाइज आई वाज। और कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड विद, हाँ जी, strong oxidizing acids only. Ketones can be oxidized with strong oxidizing acids only. बेटा इसको ना लिखना काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है जी? जरा साफ सुथरे लिख लेना। मैं तो नॉलेज के लिए चलता हूँ, तो मैं वो सुंदरता की ओर ध्यान नहीं करता हूँ। अब देख 1 डिग्री एल्कोहल्स क्या सिखाया था? मोस्ट इजीली Oxidize. Oxidize to aldehydes. aldehyde. Aldehyde reaction does not stop here. Why? क्या सिखाया था? एल्डिहाइड तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। Yes, sir. The reaction will never stop at aldehyde. It will always go to what? Carboxylic acids. Carboxylic acid. मोटे तौर पे अगर मैं आपको स्पेशल रास्ते ना सिखाऊं, तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल कहाँ जाके ब्रेक मारेगा? Carboxylic acid. और एक खास चीज, बस जब मैं पेन मोटा करता हूं तो समझ आया करके कोई खास चीज आ रही है, जो आपके पास मिथेनॉल होगा CH3OH, वो किस में ऑक्सीडाइज होगा? फॉर्मल्डिहाइड। किस में जाएगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड is a very strong reducing agent, is a very powerful reducing agent. इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि अगर आप इसको अपने हाथ की स्किन के ऊपर भी रखोगे ऐसे, it is going to decompose into what? Carbon dioxide, water with any oxidizing agent, any, even heat भी। तभी तो मदर नेचर ने हनी बीज, एंड्स के अंदर प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज डाली है? उनके फॉर्मिक एसिड। सो दैट इज अ फॉर्मिक एसिड। तो अगर आपको फॉर्मिक एसिड यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड मिला, उसका अंत एसिड पे नहीं होगा, उसका अंत कहाँ पे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पे होगा। रेस्ट ऑल एल्डिहाइड विल गो टू द एसिड्स पे जाने वाले, बात भूलने की नहीं है, ठीक है जी? तो Yes, sir. एल्कोहल्स जो आपको करवाया are oxidized by mild oxidizing agent to aldehyde, which automatically goes to carboxylic acid, If the formic acid is formed, acetic acid बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं,
एक कार्बन वाला एसिड it get oxidized further to carbon dioxide and water. फॉर्मिक एसिड की शान में कुछ बोल लो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये टिकता ही नहीं है, ये बहुत जल्दी आगे चल जाता है। सो दैट इज, हम आपको फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए जो रास्ते करवाएंगे वो भी डिफरेंट करवाने वाले हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड बिंदल, ये नीचे वाला 1 डिग्री अल्कोहल बेटे कहाँ पे जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आगे कहाँ ब्रेक मारेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो क्यों ना हम आपको कुछ नए रास्ते सिखाएं जिससे आपको पता लगे कि हाउ कैन यू स्टॉप द रिएक्शन एट द एल्डिहाइड। सो देयरफॉर हम आपको खास चीज बताने वाले हैं, द वे टू कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड। ये खास चीज आने वाली है। 1 degree alcohol can be converted to aldehyde by any of the following ways जो मैं सिखाने वाला हूँ। The first is oxidation under continuous distillation by KMnO4 और potassium dichromate। Continuous distillation, आप में से कौन बता सकता है कि इसमें से किसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? पता नहीं सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जरूरत होता है। सो दिस हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या था? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन शुड बी डायरेक्टली बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन। डली अल्कोहल्स में आ गया हाइड्रोजन, यार। तो इसमें देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ब्रदर कीटोइनॉल की तरफ से अगर आ जाए, अदरवाइज नहीं। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाँ जी, याद आ गया तो बता। इसी का ही। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस। मैं देख रहा था कि 1 मिनट के लिए तो शांति हो गई है, बट हर किताबों में हर जगह पे बोला जाता है कि हमारे बच्चे को खूब अच्छा पढ़ाना, बट वो बच्चों के मुंह में अगर जबान ही ना हो तो फिर उनके साथ कैसे बात की जा सकती है ना? क्यों पर? तो यस सर। मैंने सिर्फ टाइम देखा था कि देखते हैं कि कौन कौन भूल जाएंगे, बोलना भूल गए हैं। तो काफी लोग तो बोलना ही भूल गए थे उस वक्त। तो गुड, ग्रेट, वेरी गुड। तो ग्रेट। तो ये ऐसा था बेटे, कॉन्टिन्यूअस डिस्टिलेशन कराने के लिए इसका डायग्राम बना रहा हूँ डॉली। तो ठीक, ये और ये इधर कंडेंसर भी लगा देते हैं, याद आ गया? हल्का सा डायग्राम इधर डाल देते हैं बहना 1 डिग्री अल्कोहल और डाल देते हैं KMnO4 और इधर थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हीटिंग दे देते हैं। अब जब एल्डिहाइड बनेगा, हमने कहा कि हीटिंग करते रहो। हीटिंग करने से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लेस है। द मोमेंट ये बनेगा, इसके क्या बन जाएंगे? वेपर बन जाएंगे। वेपर। और इसके वेपर बन जाएंगे और ये इधर आ जाएगा एल्डिहाइड, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इधर ही रह जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। अगर आप डिस्टिलेशन ना करते तो पर ये एल्डिहाइड आगे किस में ऑक्सीडाइज हो जाता? ये समझ आया मैंने क्या जुगत लगाई? मैंने क्या जुगत लगाई है कि मैंने कॉन्टिन्यूअस डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट कर दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। सो फर्स्ट मेथड गुड़िया जो तेरे को सिखाया गया है, दैट इज डिस्टिलेशन अंडर कॉन्टिन्यूअस व्हाट? डिस्टिलेशन अंडर ऑक्सीडेशन अंडर कॉन्टिन्यूअस डिस्टिलेशन। सेकंड इज by CrO3 in anhydrous medium।
अच्छा, अगर समझ पाओ तो बेटा इसको लॉक करके रखना। जो आपका क्रोमियम है, अगर क्रोमियम जहां पे भी आ रहा है, अगर उसको वाटर लग गया तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? एसिड पे ले जाएगा। और अगर क्रोमियम को एनहाइड्रस मीडियम में रखा गया तो वो 1 डिग्री को पर्ल एल्डिहाइड में ले जाएगा। इसको लॉक कर दे बेटे, ठीक है। Okay, sir. थर्ड इज Collins reagent. Collins reagent is CrO3 2-pyridine complex in dichloroamine. The PCC is most important. ये आपकी NCERT भी सबसे ज्यादा यूज करती है। Rather matter of fact, अगर मैंने आपको 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाने के लिए बोला NCERT रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो तुमने PCC यूज करनी है। What is PCC? Pyridinium chlorochromate. This is the most important reagent. CrO3, pyridine acid. This is going to convert 1 degree alcohol into what? The aldehyde. Aldehyde. The next one is Guria, PDC. This is pyridinium dichromate. Pyridinium dichromate. pyridine देखो पता है क्या होता है? Yes, sir. C5H. 5N. तो ये प्रोटोनेट हुआ है और इसके बाद क्रोमेट के ऊपर -2 चार्ज है, तो इसको मैंने 2 किया हुआ है। ठीक, इसको जब प्रोटोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और डाइक्रोमेट के साथ इसको हमने 2 पे। सो दैट इज आल्सो गोइंग टू कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू व्हाट? एल्डिहाइड। Aldehyde. और एक खास बात, पहली बात, PCC, right, will convert 1 degree alcohols to what? Aldehyde. Aldehyde. Even जितने भी मैंने करवाए हैं, they will convert the 2 degree alcohols to किसको? Ketones में भी Ketone. convert. But these will not oxidize carbon-carbon double bond. That will remain intact. ये देख, डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसा बच गया। डबल बॉन्ड शर्मा जी ऐसे का ऐसा बच गया। You people should remember that क्यों मैं पिछले साल से मैं क्रोटाइल अल्कोहल के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस मारा करता था। अगर इसको PCC से ऑक्सीडाइज किया तो आपको शर्मा जी क्या मिल जाएगा? क्रोटन एल्डिहाइड। और क्लास 11th में करा चुका हूं, अभी फिर थोड़ी देर में करवाऊंगा। अगर मैंने इसके ऊपर KMnO4 डाला, शर्मा ध्यान कर, पेन का रंग चेंज करता हूं कंट्रास्ट बनाने के लिए। KMnO4 इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। KMnO4 will oxidized carbon-carbon double bond as the CH2OH को भी ऑक्सीडाइज करेगा। गुड़िया ये तेरे को भी करवाया जाएगा, हालांकि क्लास 11th में कराया गया है। KMnO4 इसको एसिड पे लाके देगा और इसको भी एसिड पे देगा और ये वाली कार्बन भी कहाँ जाएगी? ये पे जाएगी। अभी इस क्लास में +2 में ये वाला रिएक्शन ये समझाना अभी पेंडिंग है। ठीक है जी, KMnO4 कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कैसे ऑक्सीडाइज करता है। इस वक्त तो मैं सिर्फ आपको PCC PDC पे बात कर रहा हूँ। PCC PDC can oxidize what? The 1 degree alcohol to aldehyde. छठा is CrO3 in aqueous acetone and sulfuric acid, Jones reagent. सातवां is Swann's oxidation. इसकी शर्मा लिस्ट बनाना, ठीक? Yes. Swann's oxidation, ये सारे 1 डिग्री अल्कोहल को कहां पे लेके जाने वाले हैं? 1 डिग्री पे। इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो
तुम किसी को भी नहीं भूलोगे। इज जो मोस्ट कॉमनली यूज होगा गुड़िया, वो कौन सा होगा? पीसीसी पीडीसी। सारे एक काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? दीज ऑल जो सातों के सातों आपको रास्ते करवाए हैं, 1 डिग्री एल्कोहल को किस में लेके जाएगा? एल्डिहाइड में लेके जाएगा। अगर तुमने ये नहीं यूज किया तो आप चले जाओगे कहां पे? एसिड के ऊपर चले जाओगे। समझ आया बेटिया? फॉर एग्जाम्पल इधर देख, ये देख, अगर आपके पास CH3 CH2OH था, शर्मा जी जानबूझ के तुम्हारे से यूज करवा रहा हूं, इसको एसिटाल्डिहाइड में डालना है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो? पीडीसी या पीसीसी। वेरी गुड। पहले नंबर पे पीसीसी, दूसरे नंबर पे पीडीसी शर्मा, तीसरे नंबर पे जोन स्वर्ण सब कुछ याद रहेगा। यस सर। और अगर आपने KMnO4 बेसिक मीडियम में यूज किया, क्या मिलेगा शर्मा जी? तो CH3CHCOH। बट याद रखना दिस इज बेस, तो रिएक्शन यहां नहीं रुकेगा। तेरा रिएक्शन गुड़िया कहां रुकेगा? यहां, बेसिक KMnO4 है ना। और यस अगर आपने K2Cr2O7 यूज किया, ये किस में आता है? एसिड में। और आपका रिएक्शन कहां रुकेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पीसीसी पीडीसी की खास चीज समझ पा रहा है? These are used to convert, हाँ बेटिया, the 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड। अगर ये सारे के सारे पीसीसी पीडीसी आपने 2 डिग्री पे आपने यूज किए, तो वो उसको कीटोन्स पे लेके जाएगा। That is, secondary alcohols can be oxidized to ketones by all the above oxidizing agent as well as KMnO4 potassium dichromate to कीटोन्स में लेके जा सकता है। 3 डिग्री alcohols बेटिया do not get oxidized। बार बार बता रहे हैं आपको, they are first dehydrated to alkenes which are further oxidized to ketone or acid depending upon conditions। समझा? पेज नंबर 63 अभी वापस आता हूं, जहां पे मैंने कहा था कि कॉपी कर लेना। शर्मा जी, 1 डिग्री अल्कोहल नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कहां जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर आपको एल्डिहाइड पे रोकना है, पीसीसी पीडीसी स्वर्न्स ऑक्सीडेशन जोन्स रिएजेंट कॉलिन्स रिएजेंट आपने यूज करने हैं। यस सर। 2 डिग्री अल्कोहल किस पे जाएंगे? कीटोन्स पे। किस किस के साथ जा सकते हैं? माइल्ड एंड मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो, ठीक, सॉरी माइल्ड नहीं यूज करना है, ठीक, माइल्ड सिर्फ एल्डिहाइड के ऊपर आएंगे। और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन्स पे जाएंगे। टर्शियरी अल्कोहल क्या करते हैं? डू नॉट ऑक्सीडाइज। डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। कीटोन्स बड़े ढीठ होते हैं ऑक्सीडेशन के प्रति। Ketones do not get oxidized further. Ketones can be oxidized to acid by strong oxidizing agent with loss of carbon atom. For example, इधर symmetrical ketone दिख रहा है, देखो symmetrical? यस सर, यस सर। बेशक ये बॉन्ड तोड़ दे, बेशक ये बॉन्ड तोड़ दे। इधर कितने कार्बन है आपके पास? 2 कार्बन वाला कहां गया? एसिटिक एसिड। एक कार्बन वाले ने बनाया होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पे गाड़ी रुकेगी नहीं, कहां जाने वाला है? जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। गुड बेटिया, अब मेरे साथ ये काम करा। तो एक सेकंड, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। KMnO4
राइट, एसिडिक और हीट। कीटोन्स हीट हैं ऑक्सीडेशन के प्रति, इनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग से ये टूट जाएगा, इसके ऊपर जोन्स वगैरह काम नहीं करेगा। ठीक है, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 क्या मिलेगा? C2H5COH। yes sir। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2 CH3COH। अर्श आगे आओ। अर्श Yes sir। क्या मिलेगा? So benzoic acid। बड़ा बढ़िया बोला है। और For CO2 or H2O। शाबाश शेर खान। अब बता, ये तो So टूटेगा नहीं, benzoic। ये नहीं Yes टूटेगा। sir, benzoic। वेरी गुड। Propanoic acid। वेरी गुड। अगर तू गलत भी बोलता तो मैं ठीक कर देता, और आपने बिल्कुल ठीक बोला। तुमने बचपन में वो स्कूल में रामायण या महाभारत वैसे तो पढ़ी होगी पक्का, अरे टीवी पे तो देखा होगा। Yes sir। तो वो कृष्णा, पांडवा और कौरव ये सब सुने हुए हैं? Yes sir। Yes sir। Krishna was a great politician, right? He was a very intelligent person. So unki classification is in that. So he could see that अब मुझे इस जो उनका जो भी साम्राज्य था कि मुझे यहाँ पे अब एक नया राजा बनाना है जो मेरे मुताबिक बनेगा। आई एम गोइंग टू कंट्रोल द सीन। ही इज बेसिकली उनके बहुत बाद में आए चाणक्य, राइट? तो कृष्णा यूज्ड टू प्ले, so he created all that Mahabharata and everything because he was determined that they are going to go, so those are going to be like world war हुआ था तो दो गुट बन गए थे, एक अलायंस और एक एंटी अलायंस, तो वैसे उन्होंने गुट बना दिए। अब he was a politician, so he was not supposed to be bad either in eyes of Pandava or Kaurava, but at the same time he was intelligent, and Krishna himself was a great king. You remember, आपने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में। तो उन्होंने पांडवा और कौरवा के सामने एक कंडीशन रख दी, आई एम गोइंग टू एंटर इनटू दिस द ग्रेट बैटल, द एपिक बैटल, बट एक तरफ तो इट विल बी मी यानी कि कृष्णा, एक तरफ मेरी पूरी आर्मी होगी, बस ऐसा होगा, और मैं जो हूंगा मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। ये जो कौरव थे इनको पावर का लालच था, इन्होंने देखा कृष्णा और वो भी हथियार नहीं उठाएंगे तो कृष्णा का क्या फायदा, तो कौरवा ने क्या चुन ली? आर्मी। एंड कृष्णा पहले ही अनाउंस कर चुके थे, ये क्लियर था कि आई विल ऑलवेज गो विद द वीकर साइड। वो पहले ही अनाउंस कर दिया था उन्होंने, उससे पहले भी। और कौरवों को, बेवकूफों को ये समझ ही नहीं आया कि वो कह के आ गए थे, उन्होंने वो ही करवाया जो वो चाहते थे। इन्होंने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। एंड इफ यू हैव रेड महाभारत तो यू विल, आप उसमें से निकलेंगे। पांडवा के पास तो कुछ भी नहीं थे, वो तो धोती पहने हुए और लाठियां उठाते हुए वो तो जंगलों में भाग रहे थे। बट नाउ द ग्रेटेस्ट ब्रेन विद देम एंड देन दे कुड विन अवर, पूरी की पूरी उन्होंने कौरवों की पूरी सेना उड़ा दी थी। एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ कृष्णा। I'm deliberately quoting this instance so that what I'm going to teach you, you should remember always in your life. So, the CO group यहाँ पे अपने आप को महान फील करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा अगर मेरे पास एक छोटा ग्रुप और एक बड़ा ग्रुप आए, भाई मैं तो ग्रेट हूं, मैं किसके साथ जाऊंगा? छोटे वाले के साथ जाऊंगा। समझ आ गया? ये प्रॉब्लम unsymmetrical ketones में होगी। This is a symmetrical ketone, no problem. You send CO with this or you send CO with this. But what is this? This is asymmetry, unsymmetry. So unsymmetrical ketones में where will the CO go? With the chota group. Why I'm talking to you? Because I'm talking about oxidation of ketones with you people. Symmetrical थे,
इधर तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी, ये नहीं टूट सकता था, राइट, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। शर्मा जी के साथ भी जो हमने बात की सिमेट्रिकल कीटोन मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन दिखाने वाला हूं। So that was the logic of all the story which I always ask you people के पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, कोई स्टोरी बनाओ, रेपिटेशन करो। Popov's rule during oxidation of unsymmetrical ketone, अर्श पढ़ के बता। बोलो, the CO group tends to stay with which group? The smaller alkyl group tends to stay with the smaller alkyl group. It always tends to stay with the smaller alkyl group. For example, Vidya, this is what I was talking about. This is CH3CO, C2H5. आप लॉजिकली सोचे तो इसमें दो प्रोडक्ट आ सकते हैं, एक ये इसके साथ गया CH3COH और CH3COH, और अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ें, ये वाला, तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इधर से 3 कार्बन, क्या मिलेगा? C2H5COH. This will be the major because of which rule? Do you understand what has happened? How it has happened? The CO group has gone with the weaker, the छोटा group. That was a story जो मैंने आपको बताने की, रट्टा लगवाने की कोशिश की थी। आज का लास्ट रिएक्शन, और मुझे 100% गारंटी है तुम गड़बड़ी नहीं करोगे, और गड़बड़ी करेगा भी तो कुछ नहीं होगा, कोई यहाँ पे तीर नहीं चल जाएगा। I'm putting nitric acid, I'm putting KMnO4 acidic and heat. एक मिनट बेटिया, याद रखना, ketones get oxidized with strong oxidizing agent only. क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटे? सो फिर तो मिलना नहीं चाहिए। CO किसके साथ जाएगा? स्मॉलर वीकर ग्रुप के साथ, बट सर KMnO4, ओके सर, एसिडिक है। Heat, strong. KMnO4 normal, drastic heating, strong oxidizing agent. इधर 2, इधर 4, किसके साथ जाएगा? CO ग्रुप आ जाएगा, किसके साथ? स्मॉलर के साथ। वेरी गुड, शाबाश। तो पुत्र प्रोडक्ट बता दे, तेरे को पंजाबी समझ आती है? यस सर, प्रोपेनोइक एसिड, और वहां से हमें मिलेगा इसका सर नॉमेनक्लेचर मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको आता है? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, कॉमन नेम ब्यूटायरिक एसिड, मक्खन वाला। ओके, यस सर। द मक्खन वाला ब्यूटायरिक, that is ये, don't forget which rule? The Popov's rule. ठीक, what we Yes. have done, we have discussed the oxidation of alcohols. This will be continued in the next class. ओए इधर से ले लेता हूँ यार, तो क्या कर रहा है? Continued in next class, Tuesday. Test alkyl and aryl halide myself. Any confusion? फिर ट्यूसडे को क्लास भी है एंड टेस्ट भी है। उस दिन मैं कुछ मैनेज करूंगा, बट वैसे टेस्ट तो होगा ही होगा। टेस्ट का टाइम खुला कर दूंगा ना, शाम को 8 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक। ओके सर। I'm not saying कि क्लास नहीं होगी, क्लास तो होएगी बेटे, ठीक है जी? तो Yes, sir. क्लास होएगी। Anyone want to ask anything? Please, welcome. Oh, Akshita. Yes, बोल, sir.
फायदा होता है। Yes, ठीक, sir. ये हमारी डेमोक्रेसी पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे फिजूल का बोलते रहते हैं। Yes. सो हियर इज आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी शांत होगी और आप एक अच्छी जगह पे 10-15 साल के बाद जाके बैठ सकेंगे। तो थोड़ा सा बात कर ली, कोई नुकसान नहीं होता, सच में कोई नुकसान नहीं होता। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेके जाएंगे विक्टरमायर टेस्ट। ठीक, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा और टिपिकल केसेस ऑफ थोड़े से आपको खास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाने वाला हूँ। राइट, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं अपना काम कर लूंगा, आप अपना काम कितना करेंगे वो देख लेना। ठीक है जी, तो वी विल मूव फ्रॉम हियर in next class. I think that happens to be कौन सी तारीख पड़ रही है? 1st of August है ना? September. Oh, thank you. 1st of September. Bye बेटे. See you again. Good luck. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सहर अपने आप बोल लिया कर, इंतजार मत किया कर बेटे। I promise, तो एक चीज पूछेगा ना, 2-4 चीजें तेरे को कहीं ना कहीं से कुछ करवा के ही भेजूंगा। बस बात कर, नहमत बात कर, फायदा होगा। ठीक है, Thank you, sir. बाय प्रथम, टेक केयर बेटा, साइनिंग ऑफ। Good luck, my dear friends.